Today I am also coming with another desktop motherboard case study with the proper steps in Hindi and English both language I am speaking. तो ब्रदर्स आज आप लोगों के लिए एक और मैं डेस्कटॉप मदरबोर्ड का केस स्टडी लेके आया हूँ प्रॉपर स्टेप्स के साथ. Today I am saying this desktop motherboard case study that is very common checking, very common steps for all the desktop motherboard, for the all architecture which board have same problem which today I am saying in this video. आज आप लोगों के लिए जो मैं केस बता रहा हूँ उस केस में जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, जो मैं क्लूज़ बता रहा हूँ, वो क्लूज़ वो स्टेप चाहे मदरबोर्ड किसी भी आर्किटेक्चर का हो, चाहे वो हब आर्किटेक्चर का हो यानी कि GMCH ICH आर्किटेक्चर वाला हो, या चाहे वो PCH आर्किटेक्चर वाला हो, या कोई भी सीरीज़ का मदरबोर्ड हो, चाहे वो 945 हो या 31 हो, 41 हो या 55 हो या 61 या कोई भी 300 सीरीज़ का लेटेस्ट बोर्ड हो, steps are same. Today I am talking about, you can see here, today I am talking about this motherboard. You can see here model number, it's a gigabyte motherboard. You can see it's the gigabyte motherboard. Model number you can see here is the 55 series motherboard, GAH55M. You can see this motherboard. I am talking about this motherboard. आज जो मैं आप लोगों को केस बताऊंगा वो इस मदरबोर्ड का है. You can see this is my IO chip here with the eye tracing. I can see here this is my RAM supply circuit. You can see here is the VRM section, and in this motherboard dual BIOS is available. You can see here dual BIOS is available in this motherboard. What is the dual BIOS? I will explain in the another video. So here I am going to the next. Image is not forwarding. Yes, first clean it. You can see here another image. You can see same motherboard. So first of all I am discussed with you that what is the problem in this motherboard. What is the problem in this motherboard? In this motherboard there is the problem is no power on. Motherboard is not getting triggering, not power on. तो सबसे पहली बात हमारी ये आ जाती है कि इस मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है. तो सबसे पहला इस मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है कि ये ट्रिगर नहीं हो रहा, पावर ऑन नहीं हो रहा. ठीक है, जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है इस मदरबोर्ड में, फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ माई दिस मदरबोर्ड, दैट इज़ द दिस माई मदरबोर्ड इज़ नॉट गेटिंग पावर ऑन. मदरबोर्ड जो है मेरा पावर ऑन नहीं हो रहा. So we all know what is the steps. First of all, for this in this desktop motherboard, in any desktop motherboard, there we have to check when any desktop motherboard not getting power on.
कोई भी डेस्कटॉप का मदरबोर्ड हो, जब कभी भी वो पावर ऑन नहीं होता तो हमें जो चेक करने की ज़रूरत होती है वो सब में सेम मदरबोर्ड, सारे मदरबोर्ड कोई भी आर्किटेक्चर का हो, जैसे मैंने पहले बोला सेम स्टेप होता है। इन ऑल आर्किटेक्चर मदरबोर्ड वी हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स फॉर द नो पावर ऑन प्रॉब्लम। वी हैव टू चेक इट्स स्टैंड बाय condition, and second we have to check the trigger condition. So if any motherboard of the desktop which have problem the no power on, not getting power on, dead, we have to check first of these two things, its standby condition and its trigger condition। चाहे कोई भी आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड हो, अगर वो नो पावर ऑन के केस में हमारे पास आता है, पूरा डेड है, पावर ऑन नहीं हो रहा, तो हमें दो सबसे पहले जो स्टेप लेने होते हैं, दो कंडीशन हमें चेक करनी होती है, एक स्टैंड बाई वोल्टेज की कंडीशन एंड सेकंड ट्रिगर कंडीशन कि ये ट्रिगरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। ये दो चीज़ें हमें चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। दिस टू थिंग्स वी हैव टू चेक वेन एवर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कमिंग। So in this motherboard I am checking according to the steps. First of all I am checking the CMOS jumper voltage, CMOS jumper voltage। सबसे पहले जो मैंने चेक किया इस मदरबोर्ड में CMOS जंपर का वोल्टेज चेक किया मैंने। इट हैव 3.3 वोल्ट, इट मीन्स दिस इज़ ओके। सीमोस जंपर पे मुझे क्या 3.3 वोल्ट मिला, इसका मतलब कि ये ओके। एंड सीमोस जंपर हैव 3.3 वोल्ट, इट मीन्स माय आरटीसी रीसेट इज माय बेसिकली नॉर्मल, इट्स माय बेसिकली नॉर्मल, इट्स ओके। सीमोस जंपर पे मुझे 3.3 वोल्ट मिला, यानी कि जो मेरा आरटीसी रीसेट हम लोग जो चेक करते हैं, आरटीसी रीसेट सर्किट का, वो मेरा अवेलेबल है, ओके है। सो वन थिंग कन्फर्म हियर दैट माई आरटीसी रीसेट इज ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम अबाउट दिस आरटीसी रीसेट। तो आरटीसी रीसेट का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था, इट इज़ ओके, ये ओके है। देन आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज माई क्रिस्टल oscillator near the chipset crystal oscillator 32.768 हर्ट्ज। सो जो आरटीसी रीसेट के बाद जो मैंने इस बोर्ड में चेक किया, वो मेरा क्रिस्टल ओसिलेटर जो हमारा हर आर्किटेक्चर के बोर्ड में जो ICH PCH चिपसेट के पास लगा होता है, 32.768 कोड वाला जो क्रिस्टल लगा होता है। तो एंड दिस क्रिस्टल ओसिलेटर हैज़ अ वोल्टेज डिफरेंस इंडिकेटिंग दैट द क्रिस्टल ओसिलेटर हैज़ स्टार्टेड। तो एक क्रिस्टल ओसिलेटर पे एक वोल्टेज लेवल पे जो हमें चेक करना है, 100% अगर हमें चेक करना है तो हम लोग DSO CRO का यूज़ करेंगे, बट एक कोई दिक्कत नहीं, डेस्कटॉप में हमारा इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक मल्टीमीटर से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मल्टीमीटर से क्रिस्टल पे जो हमें पता है कि वोल्टेज डिफरेंस मिलना चाहिए, ना ही वो सेम होना चाहिए दोनों पे, ना ही दोनों पे जीरो होना चाहिए, कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलना चाहिए और उस वोल्टेज में डिफरेंसेस होना चाहिए बोथ टर्मिनल पर। तो यहाँ पे दोनों पे जो वोल्टेज डिफरेंस हमें मिलना चाहिए वो मिल गया है, यानी कि कहीं ना कहीं जो मेरा क्रिस्टल ओसिलेटर है वो ठीक है, ओके है। आफ्टर देन आई हैव टू चेक द 3 वोल्ट स्टैंड बाय, 5 वोल्ट स्टैंड बाय and RSM reset। In this motherboard CMOS वोल्टेज ओके, यानी कि RTC reset is okay, crystal oscillating is okay। After that I check
3 volt standby okay, 5 volt standby. I am getting RSM reset also okay in this motherboard. It means my RTC reset, crystal oscillator, 3.3 volt standby, 5 volt standby, RSM reset is normal in this case. तो कहीं ना कहीं जो मैंने स्टेप फॉलो किए, स्टैंड बाई कंडीशन, ट्रिगर कंडीशन, अभी ट्रिगर कंडीशन हमें चेक नहीं किया है, ये अभी स्टैंड बाई कंडीशन हमने चेक किया है कि सीमोस जंपर यानी कि आरटीसी रीसेट का जो वोल्टेज हमें चाहिए वो क्रिस्टल का ओसिलेटिंग हमने चेक किया, यानी कि वोल्टेज लेवल पे एक मल्टीमीटर से अंदाज़ा जो लगाया वो ओके है। एक अंदाज़ा हमने लगाया कि अगर DSO CRO नहीं है तो वोल्टेज लेवल पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, बट वो कहीं ना कहीं ओके था। उसके बाद स्टैंड बाई वोल्टेज 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट स्टैंड बाई आयो चिप का RSM रीसेट हमने चेक किया, वो भी यहाँ पे ओके था। आफ्टर दैट आई एम चेकिंग द पावर पिन वोल्टेज, आफ्टर आई चेकिंग द पावर पिन वोल्टेज। ऑन द पावर पिन वोल्टेज वी ऑल नो देयर शुड बिकमिंग हाई लो हाई सीक्वेंस। हमें पता है कि पावर पिन पे हाई लो हाई सीक्वेंस बनना चाहिए, इट इज़ ऑल्सो ओके। And this high low high sequence I also check on the my SIO chip IO chip। हमें ये हाई लो हाई सीक्वेंस पावर पिन पे चेक करनी होती है, उसके बाद IO चिप पे भी हमें ये हाई लो हाई सीक्वेंस जब हम लोग पावर बटन प्रेस कर रहे हैं, व्हेन वी प्रेस द पावर बटन, दिस सेम हाई लो हाई सीक्वेंस I also check on the IO chip, it is also okay, it is also okay on the IO chip this high low high sequence is becoming। तो यानी कि मेरी IO chip पे भी ये हाई लो हाई सीक्वेंस बन रहा था। आफ्टर दिस स्टेप what should I check? I have to check now IO chip to my chipset, IO chip to my chipset step। when IO chip getting the trigger signal from the power button, now this trigger signal IO chip is sending to the chipset, my PCH chipset। जब कभी भी इस तरह का केस आता है, हमें पता है हाई लो हाई सीक्वेंस क्या है, तो ये हाई लो हाई सीक्वेंस जो IO पे हमारा ट्रिगर सिग्नल गया हाई लो हाई सीक्वेंस के थ्रू, अब यही एक सिग्नल IO चिप सेंड द इंफॉर्मेशन, सेम थिंग इंफॉर्मेशन IO चिप सेंड टू द माई चिपसेट। सो दैट इज ऑल्सो ओके ऑन द IO चिप पिन। after that my chipset is sending the information on the IO chip, it is also okay। but after that I am going to checking the PS on, first I clear that। इस सब के बाद में आ गया है हमारा चेक करने का PS on। we all know that what is the PS on and its role। on the IO chip I checked this PS on, it should be normal, for the normally it should be 5 volt, but I am getting here only 1.54 volt, 1.54 volt, so it is not okay, it is not okay। PS on जो हमारा होना चाहिए नॉर्मली क्या होना चाहिए, 5 वोल्ट होना चाहिए। IO चिप की जो PS on पिन होती है वहाँ पे 5 वोल्ट होना चाहिए, बट मुझे इस बोर्ड में IO चिप का वोल्टेज कितना मिला, ओनली 1.54 वोल्ट, 54 वोल्ट, 1.54 वोल्ट ओनली मुझे यहाँ पे मिला है। दिस मीन्स दिस इज़ द वेरी लो, दिस इज़ द वेरी लो एंड दिस इज माई प्रॉब्लम इज हियर, because of this my motherboard not getting power on। so I check the circuit, this motherboard have the schematic, so some snapshot I am also here, you can see I am checking this all condition, my PS on coming here, you can see also PS on coming here, these two transistor Q71 and Q17, you can see, but this in this both circuit it's okay, there is nothing problem। so I am going to the ATX connector। दोनों सर्किट पे दो ट्रांजिस्टर थे, मैंने दोनों ट्रांजिस्टर को रिमूव करके देख लिया, बट वो ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं। then I am coming on the ATX PS on pin, you can see a 60 number pin, my PS on
and with this pin you can see one pull up resistor connected here and one capacitor also here. So when I checking here my this register value it's not showing okay 22k. So I directly remove this register and add here another 22k register. After that I check my PS1 voltage on the IO chip, it's okay now 5 volt okay. तो जहाँ PS1 पिन के साथ इस तरह का एक कैपेसिटर एक पुल अप रजिस्टर अवेलेबल होता है, 99% बोर्ड में अवेलेबल होता है, जिसके कारण काफ़ी टाइम जो पुराने टाइप के बोर्ड थे 845 उसमें क्या होता था ये डायोड और ये रजिस्टर और कैपेसिटर की जगह पे डायोड का यूज़ किया जाता था। कुछ आप गीगाबाइट के 845 865 सीरीज़ के बोर्ड देखोगे तो उसमें आप लोगों को एसएमडी डायोड मिलेगा कनेक्टेड यहाँ पे, तो उसको सिर्फ रिमूव कर देते चलता था, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे एक पुल अप रजिस्टर लगा हुआ है, तो पुल अप रजिस्टर का यहाँ पे 22 किलो ओम की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है, जो कि मल्टीमीटर में मेरे को नहीं दिखा रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम मिल गया कि ये रजिस्टर ही कल्प्रिट हो सकता है, सस्पेक्टेड हो सकता है। मैंने इस रजिस्टर को चेंज किया, रजिस्टर को चेंज करने के बाद आईओ चिप की जो PS1 पिन पे 5 वोल्ट आ गया। फिर हमने मदरबोर्ड को ऑन करने की ट्राई किया, हमारा मदरबोर्ड ऑन हो गया। सो मीन्स दिस मदरबोर्ड नॉट गेटिंग पावर ऑन बिकॉज ऑफ द PS1 ऑन द आईओ चिप बिफोर प्रेसिंग पावर बटन on the IO chip. This voltage should be 5 volt on the IO chip PS1 voltage, but I am getting only in this case 1.54 volt. So I am tracing this PS1 ATX PS1 and I am coming here to this, and this pull up register found the faulty and I just change it and my work is done, my motherboard getting power on. तो कहीं ना कहीं जो ये मेरे को 5 वोल्ट मिलना चाहिए आईओ चिप पे, पावर बटन प्रेस करने से पहले आईओ चिप की PS1 पिन पे हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए। बट यहाँ पे मेरे को जैसे मैंने आपको बताया हमें कितना वोल्टेज मिल रहा था, ओनली 1.54 वोल्ट ही मिल रहा था, यानी कि ये कहीं ना कहीं दिक्कत थी। तो ये मेरे को एक प्रॉब्लम मिल गया कि आईओ चिप की जो रिक्वायरमेंट होती है बिफोर प्रेसिंग पावर बटन, वो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं हो रही थी। तो अब हमें ये 5 वोल्ट यहाँ पे क्यों अवेलेबल नहीं है, तो हमें ये फाउंड करना था। ये तो अच्छा था, स्केमेटिक नहीं होता तो भी हम इजीली आईओ चिप की PS1 पिन से ट्रेसिंग करके फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग ATX कनेक्टर से PS1 इसकी जो पिन नंबर 16 है यहाँ से भी हम लोग इसके साथ जुड़े। मैं हर टाइम हर किसी को बोलता हूँ जब कोई मेरे को पर्सनल मैसेज करता है हेल्प के लिए, नो पावर को ऑन के लिए, तो इस तरह का मैं उनको बोलता हूँ कि इस तरह का आप एक ट्रेसिंग कीजिए, ट्रेसिंग करके अपने नोट्स में ड्राइंग बना लीजिए, फिर उस कंपोनेंटों को चेक कीजिए। आप बिना स्कीमेटिक के आराम से डेस्कटॉप मदरबोर्ड रिपेयर कर सकते हो। और ऐसे काफ़ी सारे क्लूज होते हैं जो हमें मिल जाते हैं, बिना स्कीमेटिक के भी हम काम कर सकते हैं। और मैं हमारी नई बैच में सिखाने भी वाला हूँ कि बिना स्कीमेटिक के हम डेस्कटॉप में कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये 22 किलो ओम का रजिस्टर जो था फॉल्टी था, हमने क्या किया उसको रिमूव कर दिया, दूसरा लगा दिया, मेरा काम बन गया, बोर्ड जो होगा ऑन हो गया। और आई एम शोइंग हियर इमेज ऑफ दिस, यू कैन सी हियर दैट रजिस्टर इज माय, आई एम मार्किंग हियर, यू कैन सी दिस रजिस्टर इज कनेक्टेड नियर टू दिस माय ATX कनेक्टर। रजिस्टर जो ये कहाँ पे था इस बोर्ड में, ठीक है, ये बिल्कुल इस ATX कनेक्टर के पास था, देख सकते हो आप यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है 22 किलो ओम का रजिस्टर। पोजीशन ऑफ द रजिस्टर 22 किलो ओम विच इज़ फॉल्टी इन माय केस एंड आई एम जस्ट चेंज इट एंड माय मदरबोर्ड गेटिंग पावर ऑन। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक केस कब काम आएगा कि जब कभी भी सेम मॉडल का आपके पास बोर्ड आएगा, PS1 आपको कहीं ना कहीं इस तरह का लो मिलेगा, तो आप लोगों को कहीं पे इस रजिस्टर को ढूंढने नहीं जाना। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हो ATX कनेक्टर के पास में यहीं पे लगा है। सो दिस इज द टुडे केस ब्रदर। एंड वन मोर थिंग आई एम सेइंग टू हियर अबाउट द डेस्कटॉप हार्ड डिस्क इन दिस वीडियो, आई एम सेइंग द अनदर थिंग दैट इज अबाउट द डेस्कटॉप मदरबोर्ड हार्ड डिस्क। You can see here the one desktop motherboard hard disk PCB image from the Google. I download it for showing you.
तो मैंने गूगल से यहाँ पे लिया हुआ है पीसीबी का इमेज, डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क। डेस्कटॉप की जो हार्ड डिस्क होती है, डेस्कटॉप HDD। sometime what happen, hard disk, sometime when any hard disk coming for the repairing to you, when you check that hard disk when you connect power cable to the hard disk, we all know there is some vibration. When we put our hand on the hard disk, there is some vibration and there is some noise are coming when we give the power to the hard disk। हमें पता है कि कोई डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क होती है, जब हमें उसको कभी भी पावर देते हैं तो हार्ड डिस्क पे अगर हम लोग जो हल्का सा ऊपर हाथ रखेंगे तो हमें जैसे उसको पावर देते तो कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क हमारा अंदर रोटेट हो रहा है, पावर उसको मिला तो रोटेट अपना जो काम है वो चालू किया। इस तरह का एक हमें एक्सपीरियंस, एक अनुभूति होती है, हमें उसका कुछ नॉइस आता है। बट इन दिस केस, वेन एवर दिस टाइप ऑफ केस कमिंग, वेन यू गिव द पावर टू द हार्ड डिस्क, इट्स नथिंग रिस्पॉन्ड। जब कभी भी आप उसको पावर दे रहे हो वो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, यानी कि वो ऑन ही नहीं हो रहा। देन वी हैव टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन दिस पीसीबी, वी हैव टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट एंड 12 वोल्ट। एंड मोस्टली you can see here the capacitor, sometimes this capacitor going to short, we have to change it or remove it। but suppose this capacitor is also okay, then what we should do। तो जब कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम है तो हमें हार्ड डिस्क की पीसीबी पे जहाँ पे कैपेसिटर दिख रहे हैं हम लोगों को वहाँ पे 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट चेक करना पड़ता है। अगर ये अवेलेबल है, कभी कभी काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि ये जो कैपेसिटर होते हैं शॉर्ट हो जाते हैं, लीकी हो जाते हैं, जो फिजिकली कभी हमें डैमेज भी लीकी होते हैं तो दिख जाते हैं। तो अगर शॉर्ट है तो रिमूव कर देना है, ठीक है, दूसरा कोई भी पीसीबी में से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट सपोज दिस कैपेसिटर इज ऑल्सो ओके एंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कमिंग, देन व्हाट शुड वी कैन डू? जस्ट डू वन थिंग, replace this IC। for that we have the scrap hard disk also। जब कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम मिले तो ये जो मैंने यहाँ पे इस तरह की आईसी आप लोगों को यहाँ पे एक मार्क करके दिखाई, ये आईसी को आप लोगों को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। बट उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी हार्ड डिस्क हमारे पास स्क्रैप में पड़ी होनी चाहिए, जो जिसकी पीसीबी से हम लोग ये आईसी को, सेम नंबर की आईसी को निकालेंगे और ये आईसी हम यहाँ पे रिमूव करके, फॉल्टी आईसी को रिमूव करके दूसरी यहाँ पे लगाएंगे। योर प्रॉब्लम विल बी सोल्व। आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। जो मैंने बताया कि अगर हार्ड डिस्क का पूरा कोई पावर देने से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो उसके लिए आईसी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। बट उससे भी पहले जो मैंने आपको बताया, वोल्टेज चेक करना, कैपेसिटरों को चेक करना, उसके बाद डायरेक्टली आईसी को चेंज कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द एक्स्ट्रा थिंग अबाउट द हार्ड डिस्क एंड इन फ्यूचर वी विल कमिंग to the more hard disk video also about the hard disk PCB repairing on our channel। okay, if you like our video brother, please subscribe our channel, also give like, comment and share also। we will coming with the more and more this type of free videos and I hope you will learning something about this video from this video। अगर आपको वीडियो ब्रदर्स पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हम आगे इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। और अभी सोचा है कि कुछ हार्ड डिस्क के बारे में भी मैं वीडियोस, इसी तरह के वीडियोस बनाऊंगा, आप लोगों को हार्ड डिस्क का भी नॉलेज देता रहूँगा। हार्ड डिस्क की पीसीबी रिपेयरिंग के बारे में आप लोगों को मैं बताते रहूँगा इसी तरह के केसेस के साथ। ओके ब्रदर्स, देन थैंक यू, शुक्रिया।